اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے غزہ کے حالات کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ غزہ میں ہزاروں کی تعداد میں بے قصور انسانوں کو اسرائیل نے مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ پوری دنیا مل کر اسرائیل پر تھوک رہی ہے، مگر اسرائیل کو سزا دینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ ایران بھی بس دھمکیاں دے رہا ہے اور تمام اسلامی ملک صرف باتیں کر رہے ہیں۔ اب مصر، قطر یہ کوشش کر رہا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی ہو جائے۔ امریکہ بھی کر رہا ہے کوشش، لیکن امریکہ کی کوشش کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ اصل تو آتنک پھیلانے والا امریکہ ہی ہے۔ اسرائیل کو ہتھیار دینا، مدد کرنا، یہ سارا کام امریکہ کا ہی ہے۔ اس لیے امریکہ کی کوشش کو ہم کوشش نہیں، دھوکہ مانتے ہیں، دنیا کو فریب دینا مانتے ہیں، دنیا کو بیوقوف بنانا مانتے ہیں۔ تو خیر، بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ غزہ معاہدے تک پہنچنے کے امکانات اب بالکل یوں سمجھیے کہ ختم ہو گئے۔ جی ہاں، کیونکہ اسرائیل نے اپنا آتنکواد شروع رکھا اور لگاتار وہ ایگریمنٹ، معاہدوں کو توڑتا جا رہا ہے۔ اب حماس نے بھی، مجاہدین نے بھی اپنی شرطیں رکھ دی ہے، اور نیتن یاہو نے پھر بدماشی کی اور ایک نئی شرط لگائی۔ یہ تمام چیزیں بتا رہی کہ غزہ میں اب جنگ بندی کے امکانات بالکل کم ہو گئے ہیں، بلکہ امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے بیچ ایک کال بھی ہوئی ہے، اور اس کال سے بھی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اب غزہ میں جنگ بندی اور غزہ معاہدے تک پہنچنے کے امکانات بالکل ختم سے ہو گئے ہیں، کم ہو گئے ہیں۔ ناظرین، پڑوسی ملک بنگلہ دیش سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں آج سے 15 دن پہلے اسٹوڈنٹس نے، طلباء نے اتنا زبردست آندولن، احتجاج کیا کہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ کو ملک سے فرار ہونا پڑا اور اس نے ہندوستان میں آ کر پناہ لی۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش میں بارش اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ بارش اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ خبر ہے کہ بارش اور سیلاب کی تباہی سے تقریباً 30 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں مانسون بارشوں نے تباہی مچا کر رکھ دی ہے۔ موسلا دھار بارش اور سیلاب سے 2 لوگوں کے مرنے کی بھی خبریں ہیں اور 30 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔
फ्लड फोरकास्टिंग के इदारे ने मुल्क में मजीद बारिशों की पेशन गोई कर दी है कि अभी और मजीद मुसलसल मौसलाधार बारिशें होंगी। खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया मानसून बारिश और सैलाब ने बांग्लादेश के मुख्तलिफ इलाकों को शदीद मुतासिर किया, जहां पर कई इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, जबकि घरों और इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। बांग्लादेश के एक रिहायशी ने यह बताया कि 20 साल में ऐसी सूरत हाल इससे पहले कभी नहीं देखी है। मेरा घर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। दूसरी जानिब बांग्लादेश तलबा की जानिब से भारत पर डैम के पानी छोड़ने का इल्जाम आयद किया गया है कि भारत में जो डैम है जिसका पानी बांग्लादेश की तरफ बढ़ता है, भारत ने उस डैम के पानी को छोड़ा है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में तबाही आई है। जबकि इस हवाले से तलबा की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गज्जा और फलस्तीन से। जी हाँ, इजराइल वहां पर आतंकवाद का नंगा नाच कर रहा है और अब खबरें आ रही है कि हमास के बहाने और मुजाहिदीन को ख़त्म करने के बहाने इजराइल ने गज्जा को तकरीबन 90% ख़त्म कर दिया। गज्जा की बस्ती, हॉस्पिटल, स्कूल, मार्केट्स, रिहायशी बिल्डिंगें, इन तमाम पर इजराइल ने बमबारी की। लेकिन अब खबरें आ रही है कि हमास के जंगजुओं की तलाश, यानी ये भी एक बहाना है, हमास के जंगजुओं की तलाश के लिए अब फलस्तीनियों को इंसानी ढाल बनाए जाने का इंकशाफ हुआ है। यानी इजराइल फलस्तीनियों को इंसानी ढाल बनाकर हमास के जंगजुओं की तलाश कर रहा है, ऐसी बात सामने आई है। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजराइल ने सुरंगों का मुआयना करने के लिए फलस्तीनियों को इंसानी ढाल बनाया। दूसरी जानिब इजराइल के खुफिया एजेंसी के सरबराह ने 7 अक्टूबर का हमला रोकने में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफा दे दिया है। इजराइल के खुफिया एजेंसी के नए सरबराह, जिन्होंने यरगमालियों की रिहाई को तरजीह करार दिया है, और वो कह रहे हैं कि अब हम सबसे पहले जो हमारे कैदी मुजाहिदीन की तरफ है, हाथ में है, उनको हम छुड़ाएंगे। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि कुछ महीनों पहले, कुछ महीने नहीं, बस 1.5-2 महीना पहले ईरान के सदर का एक हेलीकॉप्टर हादसे में इंतकाल हो गया, इब्राहिम रईसी। अब खबरें आ रही है, उसकी रिपोर्ट सामने आई है कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की वजह खराब मौसम और गुंजाइश से ज्यादा वजन उस हेलीकॉप्टर में था, ऐसी वजह बताई जा रही है हादसे की। जबकि ये भी बात है कि इस साल मई में मुल्क के सरहदी पहाड़ी इलाकों में, यानी मई के महीने में ये मामला हुआ था। पहाड़ी इलाकों में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारिजा ईरान हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और दीगर 7 साथी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हुए थे। और अब जब उसकी इंक्वायरी पूरी तरीके से की गई है तो ये बताया जा रहा है इस हादसे से मुताल्लिक सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अपनी तफसीली तहकीकात मुकम्मल कर ली है और उन्हें पूरा यकीन है कि ये कोई साजिश, कोई हमला नहीं था, बल्कि उन्हें पूरा यकीन है कि ये जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था और उसकी वजह खराब मौसम और गुंजाइश से ज़्यादा वजन हेलीकॉप्टर पे बताया गया है। आखिरी बड़ी खबर भी गज्जा के हालात, फ़लस्तीन के हालात को लेकर आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल इजराइल ने पनाह गज़ीन कैंपस पर हमले किए हैं, जहाँ गरीब परेशान हाल जिनके घर बिल्डिंगें सब कुछ टूट चुकी है वो कैंपों में पड़े हैं। लेकिन इजरायली आतंकवादी जगह जगह उन कैंपों पर भी हमले कर रहे हैं, इजरायली फौज के आतंक की। अभी खबर आ रही है कि इजराइल के पनाह गज़ीन कैंपस पर हमले हुए हैं, जिसमें 9 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। इजरायली फौज ने गज्जा में फ़लस्तीनियों और उनके पनाह गज़ीन कैंपों पर हमले जारी रखे हुए हैं। गुज़िश्ता कल भी इजरायली फौज ने मगरिबी किनारे में एक कैंप है, वहां पर इजरायली फौज ने हमला किया, जिसमें 9 फ़लस्तीनी फिर शहीद हुए हैं। यानी इजराइल का आतंकवाद लगातार जारी है। वहीं पर खबर यह भी आ रही है, अमेरिका ने यह कहा है, अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने यह कहा है कि अमेरिका गज्जा में इजराइल का तवील मुद्दती कब्जा कबूल नहीं करेगा। हालांकि जाहिर बात है कि अमेरिका के ही इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। अगर अमेरिका चाहे तो अभी 1 घंटे के अंदर जंग बंद हो सकती है, क्योंकि इजराइल का नाजायज बाप अमेरिका ही है
अमेरिका ही हथियार देता है, अमेरिका ही डॉलर देता है, अमेरिका ही मदद करता है और इजराइल फलस्तीनियों पर जुल्म करता है, बम बरसाता है, उनके मासूम बच्चों की जानें लेता है। ये दुनिया को मालूम है और मैं बिल्कुल खुलकर ये बातें आप तक पहुंचाता हूं। दूसरे चैनल वाले ये खुलकर इस तरीके से बात करने को तैयार नहीं, लेकिन हकीकत यही है कि अमेरिका ही सबसे अहम मुजरिम है और ये सारे काम उसी के इशारे पर होते हैं। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट